سب سے پہلے تو یہ فتح ہے ہی نہیں، ایک طرح کا قبضہ ہو گئے، لیکن فتح اس وقت ہوتی ہے جب عام عوام آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں تو بالکل یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک طالب بھی نہ ہو۔ طالب ہم لوگ مانتے ہیں طالب صرف مسجد تک، مدرسوں تک، بس یہاں تک ہی محدود رہے۔ ملک کا تو بالکل یہ لوگ نہ چلا سکتے، نہ ان لوگوں کو نظام کا پتہ ہے۔ یہ صرف اسلام کے نام پہ ہی یہ لوگ ایک دہشت پھیلا رہے ہیں۔ ایک ملک کی وہی ہو جس میں ڈیموکریسی ہو، جس ملک میں ڈیموکریسی نہ ہو وہ ملک کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ طالبان کے پاس نہ کوئی ڈیموکریسی رولز ہیں۔ بارڈرز پر آپ نے دیکھا کہ ارد گرد کیا سچویشن شروع ہو گئی ہے، اپنے ہمسایہ ممالک کی طرف ان کا سٹینس کیسا ہو گیا ہے، تو یہ مجھے بڑا الارمنگ بھی لگ رہا ہے۔ میں ان کی حکومت کے بھی خلاف ہوں، ان کے جو نظریات ہیں ان کے بھی خلاف ہوں۔ اس سے پہلے انڈینز جو تھے وہاں پہ بہت زیادہ جو تھے نا ڈپلوائڈ ہو چکے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی ایجنسیز، اپنی اپنی ہر چیز وہاں پہ مسلط کی ہوئی تھی، تو اب وہ چیزیں ختم ہوں گی۔ السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، میں ہوں ثنا امجد۔ ناظرین، حال ہی میں طالبان نے افغانستان پر فتح حاصل کر لی ہے۔ 20 سال کی طویل جدوجہد کے بعد طالبان نے افغانستان میں جیت کے جھنڈے گاڑ لیے ہیں۔ پاکستان کی عوام طالبان کی اس فتح کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہی نظام قائم ہونا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں پاکستان کی عوام سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ اسرار۔ محمد وسیم اشرف۔ یاسر خان۔ ایاز۔ طالبان کی افغانستان پر فتح پر خوش ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو یہ فتح ہے ہی نہیں، ایک طرح کا قبضہ ہو گئے، لیکن فتح اس وقت ہوتی ہے جب عام عوام آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں بالکل ناخوش ہوں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ طالبان جو ہے ایکسٹریمسٹ ہیں۔ دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، انوویشنز کر رہی ہے، اور یہ لوگ وہ 1400 سال پہلے والے تلوار بندوق وغیرہ، نہ کسی کو بولنے کی آزادی، نہ کسی کو کچھ کرنے کی آزادی، نہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوگی طالبان کی گورنمنٹ میں۔ تو میں بالکل ناخوش ہوں طالبان کی۔ میں بڑی کنفیوزڈ ہوں اس معاملے پر۔ ایک جانب تو بہت سے لوگ یہ رائے دیتے ہیں کہ جی آزادی مل گئی افغانستان کو اور امریکہ وہاں سے چلا گیا، اس کو بھگا دیا گیا، لیکن دوسری جانب جو وعدے انہوں نے کیے تھے، جب پہلے دن ٹیک اوور کیا، اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی اور جیسے کہا گیا کہ سب آزادی ہوگی، سب چیزیں ایسے ہوں گی، ویسا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ چیزیں اس کے اگینسٹ ہو رہی ہیں۔ بارڈرز پر آپ نے دیکھا کہ ارد گرد کیا سچویشن شروع ہو گئی ہے، اپنے ہمسایہ ممالک کی طرف ان کا سٹینس کیسا ہو گیا ہے، تو یہ مجھے بڑا الارمنگ بھی لگ رہا ہے، اور ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اس کے اثرات خطے پر پڑیں گے اور پاکستان پر بھی بہت زیادہ اثرات پڑیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کے لوگوں کو بڑا دل کھلا کیا تھا، بڑی پناہ دی تھی اپنے ہاں، اتنے سال وہ یہاں پر رہے، لیکن جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈیسیجن آیا کہ ابھی ان کو اپنے ملک واپس جانا ہے، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ کرکٹ میچ تھا ایک، جس کے باہر لوگ جمع ہو گئے تھے اور پاکستان مخالف نعرے لگانے لگ گئے تھے۔ تو ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جیسی تصویر کشی اس وقت کی جا رہی ہے، معاملہ اس سے بہت الگ ہے، اور معاملہ بہت الگ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں۔ طالبان کی افغانستان پر فتح پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ میں اس کو نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ سمجھتا ہوں، وہ اس حوالے سے کہ جو پریڈکشنز تھیں نا، ایک سپر پاور، دنیاوی سپر پاور امریکہ یا انڈیا یا ان کے جو اتحادی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کابل پہ ہم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پورے افغانستان میں ہے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ وہ کابل 3 مہینے تک نہیں پہنچیں گے، یہ ان کی جو ہے نا وہ ہیڈ لائنز تھیں۔ لیکن ود ان 5 days انہوں نے کابل پہ قبضہ کیا یا اس کو مسخر کیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح اس وقت پورے افغانستان پہ جو ہے نا وہ حکومت کر رہے ہیں، اور جتنے اتحادی ہیں وہ منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے غلط اندازے آپ کہہ لیں یا ان کی غلط پریڈکشنز، یا وہ انڈیا کے رحم و کرم پہ تھے کہ انڈیا ان کو جو اطلاعات دے رہا تھا اس حوالے سے وہ اپنی وہ ڈیولپمنٹ کرتے جا رہے تھے، لیکن وہ ایٹ دی اینڈ آپ دیکھ لیں افغانستان افغانیوں کا ہے۔ طالبان کی افغانستان پر فتح ہے یا طالبان نے افغانستان کو ٹیک اوور کیا؟ بیسیکلی طالبان نے افغانستان کو ٹیک اوور کیا ہے، کوئی فتح نہیں ہے میرے خیال سے، کیونکہ ایک ملک کی وہی ہو جس میں ڈیموکریسی ہو، جس ملک میں ڈیموکریسی نہ ہو وہ ملک کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ طالبان کے پاس نہ کوئی ڈیموکریسی رولز ہے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی رائے، نہ کوئی ان کے پاس بندے ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ملک کو چلائے۔
कोई फॉरेन अफेयर्स उनको टेक ओवर करे, कंट्रोल करे, इस तरह फिर वो बिल्कुल ये मुल्क नहीं चला सकते. बेसिकली अफगानिस्तान और तबाही की तरफ जा रहा है इस तालिबान के टेक ओवर से. इसका मतलब है कि आप तो नाखुश हुए. बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल नाखुश हूँ, क्योंकि जो अशरफ गनी थे वो वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान हिस्ट्री थे. फिर मजबूरियाँ होती है, बल्कि उसने एक अच्छा कदम उठाया कि उसने अफगानिस्तान छोड़ दिया, क्योंकि फिर खून रेजी होगी, फिर जो मजलूम अवाम है वो उसमें शहीद होंगे. फिर तालिबान की अफगानिस्तान पर हुकूमत से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और इंडिया और अमेरिका को क्या नुकसान होगा? फ़ायदा तो पाकिस्तान को ज़रूर होगा, लेकिन अगर अमेरिका छोड़े तो फिर फ़ायदा होगा. अमेरिका पाकिस्तान खुद IMF के कर्ज़ों पे चल रहा है, तो फिर पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? हाँ, ये फ़ायदा होगा कि जो इंडिया की जो वहाँ पे जितने भी वहाँ पे कौंसलेट्स वगैरह थी, वहाँ से मतलब पाकिस्तान को हिट करता था या जो भी प्लानिंग वगैरह करता था, पाकिस्तान तालिबान की जो पॉलिसी है वो प्रो पाकिस्तानी है. इंडिया को क्या नुकसान है? इंडिया को ये नुकसान है कि जो साउथ एशियन रीजन में पाकिस्तान का एक और हामी जो है वो बढ़ गया है. चाइना पहले से पाकिस्तान के साथ है, तालिबान भी पाकिस्तान के साथ हो जाएंगे, तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा साउथ एशिया रीजन में. नुकसान या फ़ायदे की बात नहीं है. सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जब वो अफ़गानिस्तान में अफ़गानियों की हुकूमत यानी तालिबान आ गए हैं, तो इससे फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि जैसे उन्होंने दो टोक कह दिया कि अब अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होगी. तो इट मीन्स कि आप देखेंगे इससे पहले इंडियंस जो थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो थे ना डिप्लॉयड हो चुके हुए थे. उन्होंने अपनी एजेंसीज़, अपनी रॉ, अपनी हर चीज़ वहाँ पे मुसल्लत की हुई थी. तो अब वो चीज़ें ख़त्म होंगी, तो हमें जो है ना वहाँ से अब ख़तरा जो है ना वो समझ लें 75% कम हो गया है. और इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है. और दूसरी बात ये कि हम पिछले 30-40 साल से जो है 30 से 35 लाख अफ़गानी जो हमारे बहन भाई हैं, हम उनको अपने पास रख के सपोर्ट कर रहे हैं. तो इसका कुछ तो एज हमें बेनिफिट मिलेगा ना, जब वो अपने घरों को वापस जाएंगे, वहाँ पे जाके बताएंगे कि पाकिस्तानियों ने किस तरह हमारा ख्याल रखा, हमें अपनी मैशियत दी, हमें अपनी ज़मीन, हमें अपने घर, हर चीज़. वो यहाँ पे ऐसे रह रहे हैं जैसे अफ़गानिस्तान में वो हों. उनके बच्चे जो है वो कितने खुशहाल हैं, यहाँ पे बिजनेस है, उनके हर चीज़ है. तो उसका मेरे ख्याल में हमें कुछ तो एज मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह. पाकिस्तान के लिए फ़ायदा तब होगा जब यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के वज़ीर ख़ारजा वहाँ से उनसे जाकर ख़ुद मुलाकात करें, उनसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करें. वो तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, उन्होंने तो दावत दी है कि हमसे हम जो हैं वो ताल्लुकात बेहतर करें. अब हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग उनसे किस तरह से जाकर बातचीत करें, किस तरह से उनसे मिलें. दूसरा ये है कि जो इंडिया को है वो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि इंडिया कभी भी ये नहीं चाहता कि वहाँ पर अमन रहे, पाकिस्तान में अमन रहे या पाकिस्तान के जो जितने भी हमसाया ममालिक हैं वहाँ पर अमन रहे. तो जाहिर है कि इंडिया तो यही चाहता है कि ये वहाँ पे अमेरिका के साथ मिलकर वहाँ पर दूसरे ममालिक पर कब्ज़ा किया जाए. तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को फ़ायदा तब भी होगा, और होना भी ये चाहिए कि उनसे ताल्लुकात बेहतर बनाएं, उनसे बातचीत करें. जिन बुनियादी नज़रियात पर तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर हुकूमत की है या कर रहा है, आपको लगता है कि वो नज़रियात पाकिस्तान पर भी लागू होने चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उन्हें फ़ॉलो करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं उनकी हुकूमत के भी ख़िलाफ़ हूँ, उनके जो नज़रियात हैं उनके भी ख़िलाफ़ हूँ. वो एक जहाद का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जहाद नहीं, मैं फ़साद कहूँगा. ये कुछ सुपर पावर्स की जंग यहाँ पे लड़ी गई है जो इन्हें इस्लाम का नाम दे रहे हैं. अगर जहाद करनी है, लेकिन अभी भी अफ़गानिस्तान के जो अमेरिका के आर्मी पर्सनस हैं अफ़गानिस्तान में वहाँ पे हैं, तो उन्हें क्यों छोड़ा हुआ है? अमेरिका की जो एम्बेसी है वो ख़ुद तालिबान उनको प्रोटेक्ट कर रही है. तो ये किस तरह का जहाद है? मैं समझता हूँ ये फ़साद है. ये नज़रियात ना तो वहाँ पे लागू होने चाहिए ना यहाँ पे लागू होने चाहिए. एक्चुअली जो तालिबान हैं वो नारा लगाते हैं कि शरई हुकूमत कायम की जाए, शरीयत के कवानीन को लागू किया जाए. तो हमारे यहाँ ऑलरेडी शरीयत काउंसिल मौजूद है, शरई कवानीन भी मौजूद हैं, और जो हमारा 1973 का आइन बनाया गया था वो तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को, उलमाए कराम को साथ बिठाकर उनकी मुशावरत से बनाया गया था. उसमें वक्त के साथ साथ अमेंडमेंट्स भी होती रही. तो मुझे लगता है कि हमारा आइन इस वक्त बेस्ट है, हमें किसी से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत नहीं. और ख़ास तौर पर दुनिया के उस सेगमेंट से जिसने दुनिया में इतनी दहशतगर्दी फैलाई, इतनी जानें उन्होंने ले ली, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई उनको अपना आइडियल बनाना चाहिए या इंस्पिरेशन बनाना चाहिए. जो लोग बना रहे हैं उनको आगे चल के पता चल जाएगा कि इनका असल चेहरा ये नहीं है. तालिबान ने जिन बुनियादी नज़रियात पर अफ़गानिस्तान में हुकूमत की है, आपको लगता है कि वो नज़रियात
पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पाकिस्तान पर भी लागू करने चाहिए? देखें, अगर मैं कहूँ, लोग अपना व्यूज़ है, मैं तो कहता हूँ इधर भी तालिबान आ जाए। देखें, सबसे पहले सोचते थे औरत वहाँ काम नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने आज़ादी दी। किस तरह आज़ादी दी? विद द लिमिट्स ऑफ इस्लाम, कि जी काम करें, शाना बशाना हो। देखें, उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, लेडीज़ को भी दिए हैं। पहले वो कहते थे जी वो मार देते थे सारे, लेकिन वो चेंज हुए हैं। उन्होंने अब उस चीज़ को समझा है कि हर चीज़ ज़माने के साथ चलती है। इस्लाम जो है वो क़यामत तक का दीन है, तो हमें इसलिए समझना चाहिए, हमें उस पर अमल करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो लड़की है तो वो घर में ही बैठ जाए, नहीं, उसकी अपनी एक ज़िंदगी है, उसने गुजारनी है। तो तालिबान ने ये चीज़, उसने सब माफ़ी का ऐलान कर दिया है कि आज से पहले जो कुछ हुआ वो ख़त्म। अब आगे अगर किसी ने गलती की तो उसकी सज़ा है, और सज़ा क्या है? स्ट्रिक्ट है। तो अब कोई भी नहीं करेगा। अब देखें, अब जो बहन बेटी वहाँ पे इंटरव्यूज़ ले रही है, जिस तरह उन्होंने कहा वो ले रही है, काम भी कर रही है। उन्होंने कहा किसी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ होगा। तो मैं नहीं समझता कि तालिबान जो है वो कंजर्वेटिव है या इस तरह है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे ये लोग सिर्फ लड़ाई चाहते हैं। मैं तो बिल्कुल ये नहीं चाहता। मैं तो बिल्कुल ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तालिब भी ना हो। तालिब हम लोग मानते हैं, तालिब सिर्फ मस्जिद तक, मदरसों तक, बस यहाँ तक ही महदूद रहे। और मुल्क का तो बिल्कुल ये लोग ना चला सकते हैं, ना इन लोगों को निज़ाम का पता है। ये सिर्फ इस्लाम के नाम पे ही ये लोग एक दहशत फैला रहे हैं। मेरे ख्याल से ये है कि जो इस वक्त हुकूमत आई है ना, वो हर मुल्क में जो है उसको अच्छा समझा जा रहा है, सिवाय यूरोपीय ममालिक के, क्योंकि वहाँ पर वो लोग अमेरिका या दूसरे ममालिक नहीं चाहते कि वहाँ पर इस्लामी हुकूमत नाफिज हो। तालिबान का ये कदम मेरे ख्याल से तारीख़ के लिए, तारीख़ में बहुत अच्छा कदम लिखा जाएगा। और जहाँ तक पाकिस्तान के हवाले से सवाल है, तो मेरे ख्याल से वैसी हुकूमत पाकिस्तान में भी आनी चाहिए। करंट सिचुएशन जो है, क्योंकि उन्होंने इस वक्त सबसे बड़ी बात जो है, बीइंग अ मुस्लिम, उन्होंने ये अहद लिया है, कुरान पाक के ऊपर उन्होंने जो है वहाँ पर अहद लिया है कि हम लोग इस्लामी हुकूमत नाफिज करेंगे और किसी को हमसे कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस्लामी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में भी नाफिज होनी चाहिए ताकि सबको बराबर हुकूक मिले। सबसे पहली कोशिश जो है, सबसे पहली ज़रूरत जो हमारी ये है, उसके बाद बाकी मामलात हैं सियासत के जो भी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत अच्छी उनकी जो है वो कोशिश है, और वही पाकिस्तान में भी होना चाहिए। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।